مقدس مرقس کی معرفت انجیل باب 1۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا راستہ تیار کرنا۔ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کی شروعات، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر پہلے بھیجتا ہوں جو تمہارے لیے راستہ تیار کرے گا۔ ویرانے میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کے لیے راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور ویرانوں میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کا اعلان کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کو قبول کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ یہ یوحنا اونٹوں کے بالوں سے بنی پوشاک پہنتا اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ اعلان کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے طاقتور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا فیتا کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرت نام کی جگہ سے آ کر یردن ندی میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فوراً اس نے آسمان کو کھلتے اور روح کو کبوتر کی طرح اپنے اوپر آتے دیکھا، اور آسمان سے یہ آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ اور اس کے بعد روح نے اسے ویرانے میں بھیج دیا، اور وہ اس سنسان جگہ میں 40 دن تک شیطان کے ذریعے آزمایا گیا، اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع گلیل میں آیا اور خدا کی خوشخبری کا اعلان کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمی پکڑنے والا بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور جا کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ناو پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فوراً ان کو اپنے پاس بلایا، اور وہ اپنے باپ زبدی کو ناو پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور وہ فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو عالموں کی طرح نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ اور فوراً ان کے عبادت خانے میں ایک آدمی ایسا ملا جس کے اندر بدروح تھی۔ وہ یوں کہہ کر پکار اٹھا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں تباہ کرنے آیا ہے؟ میں تجھ کو جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب وہ بدروح اسے مروڑ کر بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ بدروحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اور فوراً اس کی شہرت گلیل کے آس پاس میں ہر جگہ پھیل گئی، اور وہ فوراً عبادت خانے سے نکل کر شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس بخار میں پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر
और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और बुखार उस पर से उतर गया, और वो उठकर उसकी खिदमत करने लगी। शाम को सूरज डूबने के बाद लोग बहुत से बीमारों को उसके पास लाए, और सारे शहर के लोग दरवाजे पर जमा हो गए। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और सुबह होने से बहुत पहले वो उठा और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उन्होंने उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी ऐलान करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो पूरे गलील में उनके इबादत खाने में जा जाकर ऐलान करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे हिदायत करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, जाकर अपने आप को इमामों को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने के बारे में उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की हैं नज़र गुजार, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को इस कदर मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर खुले आम दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा, और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। मरकुस बाब 2। यीशु का फालिज के मरीज को ठीक करना। कई दिन बाद जब यीशु कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक फालिज के मारे हुए को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। मगर जब वो भीड़ की वजह से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर फालिज का मारा हुआ लेटा था लटका दिया। यीशु ने उन लोगों का ईमान देखकर फालिज के मारे हुए से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां कुछ आलिम जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फौरन यीशु ने अपनी रूह में मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है फालिज के मारे हुए से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने फालिज के मारे हुए से कहा, मैं तुमसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा, फौरन अपनी चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हलफी के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा।
بہت سے محصول لینے والے اور گناہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ فریسیوں نے، فقیہوں نے اسے گناہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تن درستوں کو حکیم کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے۔ انہوں نے آ کر اسے سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی، اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ اور یوں ہوا کہ وہ سبت کے دن کھیتوں میں سے ہو کر جا رہا تھا، اور اس کے شاگرد راہ میں چلتے ہوئے بالیں توڑنے لگے۔ اور فریسیوں نے اس سے کہا، دیکھ، یہ سبت کے دن وہ کام کیوں کرتے ہیں جو جائز نہیں؟ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی اور وہ بھوکے ہوئے؟ وہ کیوں کر ابیاتار سردار کاہن کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا، اور اس نے نذر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو جائز نہیں تھا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ اور اس نے ان سے کہا، سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ آدمی سبت کے لیے، اس لیے ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ مرکس باب 3۔ یسوع کا سبت کے دن پر کسی کو ٹھیک کرنا۔ اور وہ عبادت خانے میں پھر داخل ہوا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کے انتظار میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور اس نے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا جائز ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کی وجہ سے غمگین ہو کر چاروں طرف ان پر غصے سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا، اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فوراً باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل کی طرف چلا گیا، اور گلیل سے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور یہودیا اور یروشلم، ادومیہ سے اور یردن کے پار سور اور سیدا کے شہروں کے آس پاس سے ایک بڑی بھیڑ یہ سن کر کہ وہ کیسے بڑے کام کرتا ہے اس کے پاس آئی۔ پس اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ کی وجہ سے ایک چھوٹی ناو میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ دیں، کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا۔ چنانچہ جتنے لوگ جو سخت بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور بدروحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتی تھیں، تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ ان کو بڑی تاکید کرتا تھا، مجھے ظاہر نہ کرنا۔ پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔
اور جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے گئے، اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کریں اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں۔ وہ یہ ہیں: شمعون جس کا نام پترس رکھا، اور زبدی کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا بھائی یوحنا جس کا نام بوانرگس یعنی گرج کا بیٹا رکھا، اور اندریاس، فلپس، برتلمائی اور متی اور توما اور حلفی کا بیٹا اور تدئی اور شمعون کنانی، اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اسے پکڑنے کو نکلے، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ بے خود ہے، اور عالم جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے اس کے ساتھ بال زبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ وہ ان کو پاس بلا کر ان سے مثالوں میں کہنے لگا کہ شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے، اور اگر کسی سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر کسی گھر میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر قائم نہ رہ سکے گا، اور اگر شیطان اپنا ہی مخالف ہو کر اپنے میں پھوٹ ڈالے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کسی طاقتور کے گھر میں گھس کر اس کے مال کو لوٹ نہیں سکتا جب تک وہ پہلے اس طاقتور کو نہ باندھ لے، تب اس کا گھر لوٹ لے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی آدم کے سب گناہ اور جتنا کفر وہ بکتے ہیں معاف کیا جائے گا، لیکن جو کوئی روح القدس کے حق میں کفر بکے وہ ہمیشہ تک معافی نہ پائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ گناہ کا قصوروار ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس میں بدروح ہے۔ پھر اس کی ماں اور بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، دیکھ، تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کو جواب دیا، میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ اور ان پر جو اس کے پاس بیٹھے تھے نظر کر کے کہا، دیکھو، میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ مرکس باب 4۔ بیج بونے والے کسان کی تمثیل۔ وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، وہ جھیل میں ایک ناؤ میں جا بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی، اور وہ ان کو مثالوں میں بہت سی باتیں سکھانے لگا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، سنو، دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت یوں ہوا کہ کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کی وجہ سے جلد اگ آیا، اور جب سورج نکلا تو جل گیا، اور جڑ نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گیا۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر دبا لیا، اور وہ پھل نہ لایا۔ اور کچھ اچھی زمین پر گرا، اور وہ اگا اور بڑھ کر پھلا، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا پھل لایا۔ پھر اس نے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اسے ان مثالوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کا بھی راز دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں مثالوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں،
और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो फिर जाएं और मुआफी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये मिसाल नहीं समझे? फिर सब मिसालों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फौरन आकर उस कलाम को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फौरन खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम की वजह से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फौरन ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का धोखा और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या चराग इसलिए जलाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई मगर इसलिए कि सामने में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वो बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो ना जाने। जमीन आप से आप फल लाती है, पहले पत्ती, फिर बालों में तैयार दाने। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फौरन दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। फिर उसने कहा, हम खुदा की बादशाही को किस से मिसाल दें और किस मिसाल में उसे बयान करें? वो राई के दाने की तरह है कि जब जमीन में बोया जाता है तो जमीन के सब बीजों से छोटा होता है, मगर जब बो दिया गया तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साये में बसेरा कर सकते हैं। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी मिसालें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेमिसाल उनसे कुछ न कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के माने बयान करता था। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और नावें भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें नाव पर यहाँ तक आईं कि नाव पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, यानी थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मरकुस बाब 5। यीशु का एक बदरूह से भरे आदमी को ठीक करना।
اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے۔ جب وہ ناؤ سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں بدروح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے بدروح، اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ اور وہاں پہاڑ پر خنجیروں یعنی سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ پس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا، ہم کو ان خنجیروں یعنی سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ پس اس نے ان کو اجازت دی، اور بدروہیں نکل کر خنجیروں یعنی سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کنارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ پس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور خنجیروں یعنی سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ ناؤ میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی، میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا، اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دکھپولیس میں اس بات کی چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ جب یسوع پھر ناؤ میں پار آیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔ اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام کا آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گرا اور یہ کہہ کر منت کی، میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ پس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی حکیموں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی، اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع کو فوراً اپنے میں معلوم ہوا کہ مجھ میں سے قوت نکلی۔ اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی
اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامتی سے جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے یہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے غور نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، صرف اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ شور ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر اس نے کہا، تم کیوں شور مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ اے لڑکی، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فوراً اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا، لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ مرکس باب 6۔ یسوع کا ناصرت میں نکارہ جانا۔ پھر وہاں سے نکل کر یسوع اپنے شہر میں آیا، اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی؟ اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی؟ اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کی وجہ سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا، اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھرا۔ اس نے 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور ان کو بدروحوں پر اختیار بخشا، اور حکم دیا، راستے کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو، نہ روٹی نہ جھولی، نہ اپنے کمر بند میں پیسے، مگر جوتیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور اس نے ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو۔ جس جگہ کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے چلتے وقت اپنے تلوؤں کی مٹی جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور 12 شاگردوں نے روانہ ہو کر اعلان کیا کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کر دیا۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا، کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر بعض کہتے تھے ایلیا ہے، اور بعض یہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا، یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے اپنے آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا، اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کی وجہ سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے شادی کر لی تھی، اور یوحنا نے اس سے کہا تھا
अपने भाई की बीवी को रखना तुझे जायज नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदेस ने अपनी सालगिरह में अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की दावत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी, अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर आकर अपनी माँ से कहा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वो फौरन बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज किया, मैं चाहती हूं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों की वजह से उसे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फौरन एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सिर लाए। उसने जाकर कैद खाने में उसका सिर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए, उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी, और रसूल यीशु के पास जमा हुए, और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले जाओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने को भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो नाव में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले आए। लोगों ने उनको जाते देखा और बहुतेरों ने पहचान लिया, और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर, ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाना मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिन की मजदूरी से रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उन्हें हुक्म दिया कि सब हरी घास पर कतार में होकर बैठ जाएं। बस वो 100-100 और 50-50 की कतारें बांधकर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सेर हो गए, और उन्होंने बेइस्तेमाल खाने और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं, और खाने वाले 5000 मर्द थे। और फौरन उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि नाव पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। जब शाम हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग हैं, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन
उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फौरन उनसे बातें की और कहा, मुतमईन रहो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो नाव पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गन्नेसरत के इलाके में पहुंचे और नाव किनारे पर लगाई। और जब नाव पर से उतरे तो फौरन लोग उसे पहचानकर उस सारे इलाके में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को राहों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। मरकुस बाब 7। यीशु का अंदरूनी पाकीज़गी के बारे में तालीम देना। फिर फरीसी और कुछ आलिम उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे, और उन्होंने देखा कि उसके कुछ शागिर्द नापाक, यानी बिना धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब ना धो लें नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर लें नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और आलिमों ने उससे पूछा, क्या वजह है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबुवत की, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को छोड़कर आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है, अपने बाप की माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिसका तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नज़र हो चुकी, तो तुम उसे फिर माँ या बाप की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बेकार कर देते हो, और ऐसे बहुतेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसको नापाक करती हैं। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में आया तो उसके शागिर्दों ने उससे इस मिसाल का मतलब पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और गंदगी में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मक्कारी, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई,
शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर छुपा न रह सका, बल्कि फौरन एक औरत जिसकी छोटी बेटी में बदरूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुरूफिनिके। उसने उससे दरखास्त की कि बदरूह को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों के रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम के खातिर जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। और वो फिर सूर शहर की सरहदों से निकलकर सैदा शहर की राह से दिख पुलिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ़्फ़तह, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरह खुल गई और वो साफ बोलने लगा। उसने उसको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने निहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। मरकुस बाब 8। यीशु का 4000 लोगों को खिलाना। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर को रुखसत करूं तो रास्ते में थक कर रह जाएंगे और कुछ इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया, इस वीराने में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको खिला सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं। उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे रख दी। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए बेइस्तेमाल खाने के 7 टोकरे उठाए, और वो लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया। वो फौरन अपने शागिर्दों के साथ नाव में बैठकर दलमनूता के सूबा में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींचकर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को कोई निशान ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर नाव में बैठा और पार चला गया। वो रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया, खबरदार, फरीसियों के तालीम और हेरोदेस की तालीम से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं। मगर यीशु ने ये मालूम करके कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो
کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے؟ آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں، کان ہیں اور سنتے نہیں؟ اور کیا تم کو یاد نہیں جس وقت میں نے وہ 5 روٹیاں 5,000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنی ٹوکریاں بے استعمال کھانے سے بھری ہوئی اٹھائیں؟ انہوں نے اس سے کہا 12۔ اور جس وقت 7 روٹیاں 4,000 کے لیے توڑیں تو تم نے کتنے ٹوکرے بے استعمال کھانے سے بھرے ہوئے اٹھائے؟ انہوں نے اس سے کہا 7۔ اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے؟ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ اس نے پھر دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا اس گاؤں کے اندر قدم نہ رکھنا۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلپی کے گاؤں میں چلے آئے اور راستے میں اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یوحنا بپتسمہ دینے والا، کچھ ایلیاہ اور کچھ نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے پوچھا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا تو مسیحی ہے۔ پھر اس نے ان کو تاکید کی کہ میرے بارے میں کسی سے یہ نہ کہنا۔ پھر وہ ان کو تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کاہن اور عالم اسے رد کریں اور وہ قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ پطرس اسے الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، مگر اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو ملامت کی اور کہا اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ کیونکہ جو کوئی اس بے ایمان اور بری قوم میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ مرکس باب 9۔ تبدیل حیات۔ اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب یوحنا کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا، اور ایلیاہ موسیٰ کے ساتھ ان کو دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ پطرس نے یسوع سے کہا ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے،
बस हम 3 तंबू बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मतलब हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा, आलिम क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना जरूर है? उसने उनसे कहा, एलिय्याह अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और जलील किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है और आलिम लोग उनसे बहस कर रहे हैं। और फौरन सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगे। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेएतिकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फौरन रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने उसे अक्सर आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या जो तू कर सकता है, जो एतिकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फौरन चिल्लाकर कहा, मैं एतिकाद रखता हूं, मेरी बेएतिकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उसने उस बदरूह को झिड़क कर कहा, मैं तुझसे कहता हूं, इसमें से बाहर आ और इसमें फिर दाखिल ना होना। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये सिर्फ दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे, और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम रास्ते में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है।
پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب سے پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ مرکس باب 10۔ طلاق اور نکاح کے بارے میں گفتگو۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں میں اور یردن کے پار آیا، اور بھیڑ اس کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا۔ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ مگر یسوع نے ان سے کہا، اس نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن پیدائش کی شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہیں۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کے بارے میں پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے شادی کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے شادی کرے تو زنا کرتی ہے۔ پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا
और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल नहीं होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। जब वो बाहर निकलकर रास्ते में जा रहा था, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, धोखा देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने बचपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उसको देखा और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वो निहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ नजर करके कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और इंजील के खातिर छोड़ दिया हो, और अब इस जमाने में 100 गुना ना पाए, घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ, और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ते में थे और यीशु उनके आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे और जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थीं। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे, और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जबदी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं, तुम ले सकते हो?
उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं तुम लोगे, लेकिन अपनी दाहिनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। जब उन 10 ने ये सुना तो याकूब और यूहन्ना से खफा होने लगे। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। मगर तुम में ऐसा कौन है, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहता है वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा फकीर रास्ते के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि इत्मीनान रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना चोगा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फौरन देखने लगा और रास्ते में उसके पीछे हो लिया। मरकुस बाब 11। यीशु का शानदार तौर पर आना। जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का जवान बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे, तुम ये क्यों करते हो, तो कहना, खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फौरन उसे यहां भेजेगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नजदीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहां खड़े थे उनमें से कुछ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे ये पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है। आलमे बाला पर होशन्ना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजों का मुआयना करके उन 12 के साथ बैतनिय्याह को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना।
फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको, जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, बाहर निकालने लगा और सर्राफों के तख्त और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। अगर तुम मुआफ न करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ ना करेगा। वो फिर यरूशलेम में आए, और जब वो हैकल में टहल रहा था तो सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे इख्तियार दिया है कि इन कामों को करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम जवाब दो, तो मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से, तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूं। मरकुस बाब 12। बुरे किसानों की तमसील। फिर वो उनसे मिसालों में बातें करने लगा। एक शख्स ने बाग लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेस चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से बाग के फलों का हिसाब ले ले। लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बहुतेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ को पीटा और कुछ को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आखिर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मीरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और बाग के बाहर फेंक दिया। अब बाग का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके बाग
औरों को देगा। क्या तुमने ये लिखे हुए को नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये मिसाल उन्हीं पर कही। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने, कुछ फरीसियों और सदूकियों ने, हेरोदेस को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसे फंसाएं, और उन्होंने आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं, बल्कि सच्चाई से खुदा के रास्ते की तालीम देता है। बस कैसर को जिजिया देना जायज है या नहीं? हम दें या ना दें? उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास 1 दीनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। फिर सदूकियों ने, जो कहते थे कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया, ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बे औलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए, तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ले, ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। दूसरे ने उसे लिया और बे औलाद मर गया। इसी तरह तीसरे ने, यहां तक कि 7 बे औलाद मर गए। सबके बाद वह औरत भी मर गई। क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस वजह से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोगों में से मुर्दे जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की तरह होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा, मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। वो तो मुर्दों का खुदा नहीं, बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बहुत ही गुमराह हो। और आलिमों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको अच्छा जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा, सब हुक्मों में पहला कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया, पहला ये है, ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा हुक्म यह है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं। आलिम ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा कोई नहीं। और उसे सारे दिल और सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी, कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया, तो उससे कहा, तो खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा, फकीह क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने खुद रूह उल कुद्दूस की हिदायत से कहा है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं।
दाऊद तो आप से खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा कहाँ से ठहरा? आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। फिर उसने अपनी तालीम में कहा, आलिमों से खबरदार रहो, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और जियाफतों में सद्र नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी दुआएं करते हैं। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बहुतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि सभी ने अपने माल की ज्यादती से डाला, मगर इसने अपनी गरीबी की हालत में जो कुछ इसका था, यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। मरकुस बाब 13। यीशु का आने वाले कल के बारे में बताना। जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देख ये कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उनसे कहा, तू इन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है? यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, वो मैं ही हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़ होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों की शुरुआत ही होंगी, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मनादी की जाए, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही करना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह उल कुद्दूस है। भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाले करेगा, और बेटे माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम की वजह से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली नापसंद चीज को उस जगह खड़ी हुई देखो जहां उसका खड़ा होना जायज नहीं, पढ़ने वाला समझ ले, उस वक्त जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हो वो अपने घर से कुछ लेने को ना नीचे उतरे न अंदर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों। और दुआ करो कि ये जाड़ों में ना हो, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि पैदाइश के शुरू से जिसे खुदा ने पैदा किया न अब तक हुई है न कभी होगी।
अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई इंसान ना बचता, मगर उन चुने हुओं की खातिर जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, या देखो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो चुने हुओं को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो। देखो, मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरने लगेंगे और जो ताकतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने चुने हुओं को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा। अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। ज्यों ही उसकी डाली नर्म होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो नजदीक, बल्कि दरवाजे पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हों, ये नस्ल हरगिज खत्म ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। लेकिन उस दिन या उस वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया, और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त, या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मरकुस बाब 14। यीशु का बेथेन में मसह होना। 2 दिन के बाद फसह और ईद फितर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर धोखे से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे, ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिय्याह में शमौन, जो पहले कोढ़ी था, उसके घर में खाना खाने बैठा, तो एक औरत जटा मासी का बेशकीमती इत्र संगे मरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सिर पर डाला। मगर कुछ अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र तकरीबन 300 दिन की मजदूरी से ज्यादा की कीमत में बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिख करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फिर यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहिन के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए
और उसको रुपये देने का इकरार किया, और वो मौका ढूंढने लगा कि किस तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फितर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़बह किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है, मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा मेहमान खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दुखी होकर और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है जो मेरे साथ थाल में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा था। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सभी ने उसमें से पिया। उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। फिर हम्द गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें इधर उधर हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, चाहे सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। इसी तरह और सबने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसिमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उसने कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो यह वक्त मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। तो अभी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे
कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो, चलो देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि फौरन यहूदा, जो उन 12 में से था, और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था, जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फौरन उसके पास गया और कहा, ए रब्बी, और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि लिखा हुआ पूरा हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए, और अब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीह उसके यहाँ जमा हुए। पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने के अंदर तक गया और सिपाहियों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहिन सब सद्र अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां सही ना थी। फिर कुछ ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदिस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा, और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उसकी गवाही सही ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता? ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस यूसुफ का बेटा मसीही है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं हूं, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत रही? तुमने ये कुफ्र सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब कुछ उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और सिपाहियों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जे में ले लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूं कि तू क्या कहती है। फिर वो बाहर सहन में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से है। मगर उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक तू उनमें से है, क्योंकि तू गलीली भी है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फौरन मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई।
मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। और उस पर गौर करके रो पड़ा। मरकुस बाब 15। यीशु का पिलातुस के सामने परखा जाना। और फौरन सुबह होते ही सरदार काहिनों ने और बुजुर्गों और फकीहों और सब सद्र अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहां तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ उस पर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिन ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनके खातिर बरअब्बा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उसे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, वो मसलूब हो। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए, वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो प्रेतोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे इरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सिर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और वो उसके सिर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से इरगवानी चोगा उतारकर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमौन नाम एक कुरैनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए, और वो उसे मुकाम गुलगुता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर पर्ची डाली कि किसको क्या मिले, उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया, और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किया। तब इस मजमून का वो लिखा हुआ कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सिर हिला हिलाकर उस पर लानत करते और कहते थे, वाह, मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतरकर अपने आप को बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब 2 पहर हुई तो पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया,
الوہی الوہی لما شبختنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے کچھ نے یہ سن کر کہا، دیکھو یہ ایلیہ کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر سوختے کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھیں تو ایلیہ اس کو اتارنے آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو سپاہی اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں جان دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھیں۔ جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہولیں اور اس کی خدمت کرتی تھیں، اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم سے آئی تھیں۔ جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے 1 دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیہ کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے ہمت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسے جلد مر گیا، اور سپاہی کو بلا کر اس سے پوچھا، اس کو مرے دیر ہو گئی؟ جب سپاہی سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔ مرکس باب 16۔ یسوع کا پھر سے زندہ ہونا۔ جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں، اور آپس میں کہتی تھیں، ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا، اور نہایت حیران ہوئیں۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا تلاش رہی ہو۔ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اس کو دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگیں، کیونکہ کپکپی اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ ہفتے کے پہلے دن جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھیں، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے شاگردوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی۔ انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جی اٹھا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر وہ ان 11 شاگردوں کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ساری دنیا میں جا کر ساری مخلوق کے سامنے
انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ تکلیف نہ پہنچے گی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔